Good evening to all of you. See, there are some students who are talking about postponement of the examination. वो कह रहे हैं कि सर एग्जाम पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा, कुछ लोगों ने पिटिशन डाली है. You have a genuine problem, and when people put petition to get the exam postponed in the Supreme Court, it's good. It's their right. Let them do it. If you want to do, if you want to join them, join them. But a point I want to make right now is that you have only 1 month left. So try not to waste much time thinking about these things कि exam postpone होगा, petition डालें कि नहीं डालें. Rather utilize this time to the best possible way. In the best possible way, utilize this time. You have only 1 month left. और अगर एग्जाम पोस्टपोन भी होता है, आप ये समझ लीजिए कि एग्जाम का नेचर ऐसा है कि अगर ये 5 महीने और भी पोस्टपोन हो जाए तो भी स्थिति बदलेगी नहीं. यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम नाउ एंड यू विल हैव द सेम प्रॉब्लम देन. सो पोस्टपोनमेंट इज नॉट द सॉल्यूशन. फेसिंग द एग्जाम इज द सॉल्यूशन. बट वी शुड फेस द एग्जाम इन द बेस्ट पॉसिबल वे. अब पहली बात इसके अंदर आती है कि कहां से क्या पढ़ना है. करंट अफेयर्स को लेकर बहुत सारे बच्चे ट्रबल में है. लेट मी टेल यू, करंट अफेयर्स इज सच अ थिंग विच नोबडी कैन कवर 100%. टेक एनी पर्सन, एनी बुक, they must have gone through the content, but still UPSC can put a question which is not covered in the book, which is not discussed by the teacher. So how can you expect yourself to be 100% with current affairs? कोई भी ऐसा आदमी नहीं जिससे आप कुछ भी पूछो और वो जवाब दे दे, ऐसा कोई कर नहीं सकता. So try to cover as much as possible and do not think about the rest. Now how to cover as much as possible? Take one current affairs magazine of any institute जो आप अभी तक follow कर रहे हैं, and cover the magazine, cover the current affairs from that magazine. Last June means June 2019 till August 2020, cover the current affairs. June 2019 till August 2020, this current affairs is enough for you. This is at least the optimal. वैसे तो कोई अंत ही नहीं है. अगर आप देखें तो इवन समटाइम दे कैन आस्क यू करंट अफेयर्स विच इज 2 years old. 2 साल पुराना करंट अफेयर्स भी पूछ सकते हैं आपसे, कोई पर्टिकुलर इशू. तो उसका तो कोई अंत ही नहीं है. बट इफ आई टॉक अबाउट द ऑप्टिमम प्रिपरेशन, दिस इज इनफ. और उसके बाद करंट अफेयर्स के अंदर भी है मेक 2 क्विक रीडिंग्स. 2 क्विक रीडिंग बिफोर द एग्जाम. 2 रीडिंग आप लगाइए, थोड़ा सा जल्दी से इसको रीड करिए ताकि आप कवर कर पाए. एंड देन लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, दैट प्री इज एन एग्जाम नॉट ऑफ रिप्रोडक्शन, इज एन एग्जाम ऑफ recognition. Now I have read particular thing. You may ask me the answer, I may not be able to give you the answer, but when I see the option, I can click the right option. इसे कहते हैं reminiscence memory. From a reminiscence memory, the answer can come and I can take the right answer, and believe me, this happens. आपको लग रहा होगा कि आप तुक्का मारे, तुक्का नहीं होता है वो. आपके ब्रेन ने इसको पढ़ा हुआ है. Consciously you are not able to recall it, but subconsciously the answer is coming to you. So have faith in your memory, have faith in yourself, and be very cool about current affairs and study well. मैं ये नहीं कहता कि आप पढ़ाई मत करो, पढ़ाई करो मगर पैनिक मत करो आप. उसके बाद लेट्स टॉक अबाउट द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स. कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स में आप ये समझिए द सिलेबस इज वेरी बिग, बट वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल जीरो इन ऑन द इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स like polity, economy, environment, modern history, part of ancient also, because the government, the way they are inclined towards the traditional Indian culture, I feel current affairs also, ancient history also becomes important. So Indian polity, economy, environment, geography, modern history, part of ancient is very critical. You should cover them. But then covering them also completely is not possible. Here also, first of all, zero in on the important topics. I made a video some time back where I discussed important topics in Indian polity. Please do not leave them. If you leave anything else, it's okay, but do not leave them. Because examiner वही क्वेश्चन पूछेगा जो करंट में इशू था. एंटी डिफेक्शन लॉ, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, ये सब चीजें न्यूज में थी. सीबीआई रेगुलर न्यूज में. कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये चीजें हैं न्यूज में, तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है. अब बात ये आ जाती है कि वेदर शुड वी लीव द अदर थिंग्स और नॉट. डू नॉट लीव अदर थिंग्स ऑल्सो, बट फोकस ऑन दीज पर्टिकुलरली. द इश्यूज विच आर इन न्यूज, यू हैव टू फोकस मोर ऑन देम. I have issued a list already, and the remaining topics of polity, I'll make another video and give you in some time. So cover the important topics of the important subjects and then think about anything else. In the last month, do not try to be perfectionist. Perfection की expectation मत करो. जितना हो पा रहा है आप कीजिए. अभी तक परफेक्शन ठीक था, अब परफेक्शन हमें नहीं लेके जाना, बिकॉज परफेक्शन नाम की कोई चीज यूपीएससी में नहीं है. यू कैन बी बेटर बट यू कैन नॉट बी परफेक्ट. ओके. एंड देन डू नॉट हैव अ कॉम्प्लेक्स. इफ यू गेट अ क्वेश्चन विच somebody else can answer, you cannot answer. Don't worry, because if somebody can answer, you cannot answer. There will be some questions which you can answer, the other person cannot answer. तो ये होता ही है. You have not to lose confidence at this time. You have to build confidence at this time. उसके बाद अगर आप पूछें सी सेट के बारे में, सी सेट पे एटलीस्ट आई थिंक, बिकॉज इट इज क्वालिफाइंग, बट इवन व्हेन इट इज क्वालिफाइंग समटाइम इट बिकम्स डिफिकल्ट. सो गिव 7 hours a day 7 hours every week at this point of time.
how to bring 7 hours a week, 1 hour every day for 1 week, और 2 hours every alternate days. हर alternate days पे 2 घंटे दीजिए, या हफ्ते में 2 बार 4-4 घंटे दीजिए, या हर रोज 1-1 घंटा दीजिए, या आपके ऊपर है. बट सी सेट पे 7 घंटे हफ्ते का आपको मेरे हिसाब से देना ही चाहिए. उसके बाद एक बहुत जरूरी चीज है कि स्ट्रेस, हाउ टू डील विद स्ट्रेस. अंडरस्टैंड वन थिंग, स्ट्रेस इज अ नेचुरल आउटकम ऑफ द प्रिपरेशन. इस एग्जाम में स्ट्रेस होना बहुत ही लाजमी है, सबको होता है, हमें मैनेज करना आना चाहिए. बॉडी माइंड यूनिटी इज अ वेरी बिग प्रिंसिपल इन साइकोलॉजी. बॉडी अफेक्ट्स माइंड एंड माइंड अफेक्ट्स बॉडी. कीप बोथ ऑफ देम हेल्दी एंड देन सी द मैजिक, सी द रिजल्ट. हाउ टू कीप बॉडी हेल्दी? 15 minutes of exercise, 15 minutes of breathing exercise. So half an hour on your body exercise, yoga half an hour daily. आधा घंटे का योगा या एक्सरसाइज रोज करना है आपको. इट्स नॉट अ वेस्ट ऑफ टाइम, इट्स एन इन्वेस्टमेंट. उसके बाद टेक एनी मल्टीविटामिन. एक मल्टीविटामिन आपको रोज लेना है, बिकॉज व्हेन यू टेक मल्टीविटामिन योर बॉडी फंक्शंस बिकम बेटर एंड देन यू कैन थिंक बेटर, यू कैन फील बेटर, एंड देन व्हेन यू फील बेटर द रिजल्ट्स विल बी विद यू. उसके बाद हाउ टू मेक योर माइंड हेल्दी. मेकिंग द माइंड हेल्दी, द बेस्ट वे इज talk positive, talk optimistic things, and then think that everything will go fine. Also, when you study, do not flip the pages. पेज पलट पलट के मत देखिएगा कि कितना बचा है, कितना नहीं बचा है, इतना टाइम रह गया, इतना टाइम बचा है. Do not think. Keep going by pace. If you flip the pages, it will be a waste of time. अगर आप पेजेस बार बार पलटोगे, आपका टाइम वेस्ट होगा. Do not flip the pages. Keep going. आप देखना, if you do not flip the pages, within 1 hour you can do much. अगर आप बार बार पेज पलट के देखोगे कितना बचा है, कितना बचा है, तो टाइम वेस्ट होता रहेगा, कुछ होगा नहीं. Then please study in open spaces if you can. अगर आप पढ़ सकते हैं खुली जगह पे, तो आप खुली जगह पे पढ़िए, because their brain can retain more things and brain accept faster. जैसे अब मैं यहाँ टेरेस पे बैठा हूँ, so when you sit in a terrace you study there, when you sit in a park you study there. If you can study, सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, मगर आप पढ़ पाते हैं, तो इससे अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती. Open spaces are best to study in. Then how to remain motivated. To remain motivated, the best thing is that think about the day when the results will come. You should have no reason of regret at that day. Give your best. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको प्रेशर लेना है, टेंशन लेनी है, रिजल्ट पे फिक्सेट करना है. Do not fixate on the results at all. Give your best. आप अपना कर्म करो, फल की चिंता मत करो. इससे ऊपर कोई कुछ कर भी नहीं सकता. हाँ भाई, ये जरूर है कि आपको मोटिवेटेड रहने के लिए बोलना पड़ेगा, भाई अभी पढ़ ले, वरना उस दिन रिजल्ट आएगा, फिर क्या होगा. हाँ, इफ यू स्टडी फॉर 6 days एंड 1 day you don't feel like studying, it's very natural. सबके साथ होता है. आप मत पढ़िए. 6 दिन पढ़ने के बाद अगर एक दिन पढ़ने का मन ना भी करे, आप मत पढ़िए. ये बहुत नेचुरल है, सबके साथ होता है. डू नॉट थिंक अबाउट दीज थिंग्स एंड कीप गोइंग हाई एंड स्ट्रांग. गॉड इज विद यू. हैव फेथ इन योर डेस्टिनी. अपने आप को बोलो जो होगा अच्छा होगा. और ये जब आप बार बार बोलोगे ना, ये चीज आपके माइंड में बैठ जाएगी, और फिर आप इसका रिजल्ट भी देखना, प्रेशर अपने आप हट जाएगा. प्रेशर हटेगा, रिजल्ट भी निकल के आएंगे. एंड डू नॉट थिंक व्हाट पीपल विल थिंक अबाउट मी इफ आई डू नॉट डू वेल. लोगों के पास टाइम नहीं है कि वो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचे. खुद के लिए एग्जाम दो, दूसरों के लिए नहीं. ठीक है. Then I try to come up with the important topics on polity and if possible Indian economy also in coming days. Do not leave those topics. You can leave others, but I will say try to cover as much as possible. हाँ, मगर इन टॉपिक्स को तो छोड़ना नहीं है आपको, जो न्यूज में थे. The issues in news shall not be left at any cost. Am I clear? Thank you very much. God bless you all. And keep going in a very motivated way. Stay happy, stay blessed, stay healthy. Thank you very much.